General salute! Flamme! मंजी जी सर वो है ना उधर क्या सर क्या कर रहे हो I request everyone today's function. Sir, please. वो अभी डिस्प्ले में नहीं दिख रहा था. Please request. Down so that we can start the event. Napoleon once said, and I quote, that love towards motherland is the first. Before we begin today's event, I request all to please rise for the national anthem. As we all know, a bouquet is न्याय मिलेगा दुखियारों को न्याय मिले We feel honored and privileged to have with us Honorable the Chief Justice of High Court of J&K in Ladakh today in this inauguration of 3rd National Lok Adalat for the year 2023. Your Lordship, the legal fraternity of District Poonch feel privileged, honored and at the same time very emotional as the head of this institution of UT of J&K in Ladakh is visiting District Court Poonch after a gap of 3 decades. It reminds me of a couplet that तेरे आने का दिन है तेरे रास्ते में बिछाने को चमकती धूप में साए इकट्ठे कर रहा हूं मैं. On this memorable day, it is my unique privilege to extend a very cordial welcome to all of you on my behalf and on behalf of my colleagues, members of the court and staff. I feel particularly honored and gratified that Honorable the Chief Justice, Shri Justice N. Koteshwar Singh, is midst us today to inaugurate the 3rd National Lok Adalat of the year 2023 at Poonch. Today is the red letter day in the annals of the district Poonch, as head of the judiciary in the UT of Jammu and Kashmir and Ladakh is gracing the function of 3rd National Lok Adalat at Poonch and is blessing all of us. I
am informed that it is almost after 3 decades that any Chief Justice is visiting this court. The last visit of the Chief Justice of the erstwhile state of Jammu and Kashmir was in the year 1990 when the Honorable Chief Justice Shri S.S. Kant visited this border district. I heartily welcome my Lord at this function. My Lord is well-established personality in our judiciary for delivering speedy and effective justice to everyone. The High Court of UP of Jammu and Kashmir and Ladakh, under the dynamic leadership of the Honorable Chief Justice, is giving top priority to augment the basic judicial infrastructure in both the UPs of Jammu and Kashmir and Ladakh. As climatically resembles Kashmir. As far Poonch is concerned, and as soon as you landed on the soil of Poonch headquarters, which at a time was a capital of historic Poonch state, but it is not a time to go back to the detail. All what we have to say is that Bar Association Poonch, represented by President S.M. Manhas, we are here to welcome you. We grace the occasion and we adhere and appreciate your visits to Poonch. You really have the secrets of taking stocks of the situation on the spot. So it's a historic moment for all of us here, and we warmly receive you, sir. And we are already sure, sir, that your visit here will mark a new era of prosperity of justice in the district, sir. Sir, I am proud to say that the system of National Lok Adalats has been thriving in District Poonch for the last many years, and we are proud yet again to gather for the third National Lok Adalat 2023. Sir, apart from the regular judicial activities which your court and the bar have pursued, I must thank the Honorable High Court for its leading role in effecting policy making in a positive way via judicial activism. So this has helped the civil administration, particularly the district administration, in regulate our matters in a more ethical, more sensitized and a more holistic manner. So I thank the Honorable High Court as well as the various advocates and lawyers who are involved in public interest litigations either at the district level or the High Court level. So as far as the caseload is concerned with regard to dispensing justice at the earliest, as far as the revenue courts are concerned, sir, I'm sure, sir, you will have heard that the implementation of the RCCMS tracking system, sir, it has enabled the general public, especially the litigants, to track their revenue cases, which otherwise were lost in a huge load of paperwork. Not just at FCR and DEFCON level, sir, but even at the district level, in the revenue courts of the Deputy Commissioner or the Commissioner of Regional Reforms. I am also taking this opportunity to thank various members of the Poonch Legal Services Authority and the Secretary for yielding extensive volunteer advocates who are willing to take up cases of poor litigants. To the concerned advocate, now I request Rahman versus New India Insurance. We have 8 cases, 4 cases which have also been decided in Narinder Singh, Murtaza Ahmed, National Insurance Company, Labour Commissioner Poonch. Asada 43 of 1994, जिसमें 4 लाख रुपीस की कंपनसेशन जो है यही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही है। ये स्कूटीज इनको दी गई हैं। स्कूटी के बीच में हमने बीच में पड़ा, उसके बाजार में इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू। ये नेशनल लोक अदालत एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है हमारी
इंडियन जुडिशरी में जब भी किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम होता है किसी लिटिगेशन में फंस जाते हैं तो एक चीज है न्यायालय में जाए तो उसमें एक मुकदमा के लिए क्या करते हैं न्यायालय में जाके हम वकील एंगेज करते हैं और वकीली हमारे क्या समस्या है हमारा प्रॉब्लम है जज साहब को हम लोग कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की और रिलीफ मिलने की और दोनों वकील को सुन के जज साहब न्याय देते हैं। इस प्रक्रिया में जो आम आदमी है जो लिटिगेंट है उनका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ वकील को बताया कि अपना क्या प्रॉब्लम है। इसमें तो एक चीज होता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि अदालत में क्या हो रहा है, बहुत लोगों को कम जानकारी होता है। उसके अलावा क्या क्या और मुसीबत भी है, खर्चा होता है, वक्त होता है, आपका टाइम, किसी दिन आपका टाइम लग गया तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसी दिन आप कोई काम नहीं कर सकते हो। बहुत सारे मुश्किलें हैं और इतनी बड़ी संख्या है हमारे देश की, 140 करोड़ की आबादी, केसेस में नाम नहीं, 3 करोड़ से ज़्यादा है हमारा भारत सारे हिंदुस्तान में, सिविल क्रिमिनल। और यहाँ पे भी पुंछ में मुझे बताया गया कि 5000 से ज़्यादा है केसेस। और एक जज साहब कितने केस करेंगे एक दिन में? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम को भी सभी चाहे, वकील भी चाहे, जज साहब भी चाहे कि जल्दी से जल्द करें, लेकिन इतने सारे केसेस होता है तो इसलिए मुश्किल होता है जल्दी जल्दी आपको इंसाफ मिलने का। तो ये लोक अदालत जो है एक उपाय है, साधन है, जिससे कि आप दोनों बैठ के, दोनों ओपोनेंट पार्टीज बैठ के बात कर ले और उसके एक सॉल्यूशन, समाधान बनाए। ये समाधान सिर्फ जज के हाथ में नहीं है, न्यायालय में, ये समाधान आपके हाथ में भी हो सकता है। आप दोनों बैठ के बात करके एक समाधान निकले तो कितनी अच्छी बात है। आप खुद उसमें शामिल होते हैं तो आपको पता चलता है आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मिलना चाहिए। दोनों बैठ के मिलने के बाद बात करके, आपस में बात करके एक सॉल्यूशन, समाधान मिल जाए, इससे अच्छा कितनी क्या हो सकता है। यही है एक साधन है लोक अदालत का। मुझे बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे केसेस है इंश्योरेंस का, 4 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, बैठ के बातचीत से मिल गए। जो अभी कोर्ट में चले तो और हो सकता है 3-4 साल और लगे। इसमें कोई, मैं न वकील को न जज को मैं दोषी ठहराना चाहता हूँ, बिकॉज ऐसी हालत है, हमारा सिस्टम वर्क्स लाइक दैट। शॉर्टकट नहीं होता। जब अदालत में एक मुकदमा आ जाता है तो जज को भी नियम के अनुसार तय करना पड़ता है, वकील को भी उसके नियम के अनुसार ही ट्रीट करना पड़ता है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। और दोनों लक्ष्य को रख के वकील भी काम करते हैं, टाइम लगता है। इसलिए ये हम सोचते हैं कि लोक अदालत और ऐसी चीज़ है जिससे खुद आम जनता अपना समस्या को, जो खुद ही समझते हैं, हम भी तो वकील थे, हम आपके अपना समस्या कैसे कितने समझेंगे। वकील तो समझेंगे लेकिन कितना समझेंगे। वकील के पास तो एक ही तो केस नहीं है और 10, 20, 100 केस होता है।
लेकिन आपका समस्या आपका ही है। आपका समस्या आपको पता है कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, किस तरह से हल हो सकता है, आपके मन में होगा जरूर। ये बताएंगे दोनों साइड बैठ के तो समस्या का इजीली हो सकता है। एक प्रक्रिया है जो हम सोचते हैं कि इससे हमारा एक उद्देश्य लक्ष्य होता है कि जितने पेंडिंग केसेस है कम हो जाए, और वो भला आपके लिए होता है। नहीं तो हम देखते हैं, सुनते हैं, अखबार में, टीवी में देखते हैं, तारीख पे तारीख हो रहा है, खत्म नहीं होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ये लोक अदालत का फायदा उठाइए। इस लोक अदालत का फायदा इतना है कि जो आज डिसाइड हो चुका है, जो फैसला हो चुका है लोक अदालत के माध्यम से, उसके खिलाफ और अपील नहीं हो सकता है। इसके ऊपर और अपील नहीं कर सकता है, क्योंकि आप दोनों बीच में बैठ के बातचीत करके एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए अपील नहीं हो सकता। इसका अंत है, इससे और ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप केस में जीतेंगे, जो नॉर्मल मुकदमा में जो नहीं जीतते हैं वो फिर अपील करेंगे, उसमें जीत गए तो जो हार गए वो फिर अपील करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं होगा, अंत नहीं होगा। लेकिन लोक अदालत में जो फैसला हो चुका है आज, उसका अंत यही है और इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी एक फायदा है। टाइम जो हमारे पास है, वक्त है, कितनी कीमती वस्तु है। हम अदालत, हम कचहरी में जाके हम क्यों इसका बर्बाद करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये भी चीज़ है कि लोक अदालत से जब हम लोग कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं होता है, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना पड़ता है। जो लोग गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है वकील को पैसे देने का, तो आप इस माध्यम से आपका समस्या भी हल करने का एक मौका मिल जाता है। इसका फ़ायदा उठाइए। और हमारे जितने जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वकील हो, जज हो, आपको सहायता करेंगे। कोई वकील नहीं आके कहेगा कि मत करो, ये बेकार है, कोई नहीं कहता। हो सकता था शुरू में कुछ वकीलों के मन में ये आशंका था कि ये सारे मुकदमा जारी, सारे झगड़े ऐसे निपट जाएगा तो हमारा क्या होगा, एक भावना था। लेकिन ऐसे कोई नहीं होता। डॉक्टर सिर्फ कह सकते कि उसको दवाई देते जाओ ताकि ठीक ना हो, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि बीमारी ऐसे चीज़ होता है, आज एक मरीज ठीक हो जाएगा, दूसरा मरीज आ जाएगा, कि इंसान ऐसे होता है। मुझे बताया गया कि 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने कहा कि पुंछ इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो मेरा बहुत पहले से बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार विज़िट करूं। कैसे हैं पुंछ के बारे में तो सुनते हैं, बहुत सारे अखबार में भी आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इस दिन हमारे लोक अदालत के नेशनल लोक अदालत, जब यूँकि सारे देश भर लोक अदालत मनाया जा रहा है। लोक अदालत का मतलब यही है कि लोग, ऑर्डिनरी पीपल, गेट इन्वॉल्व इन द लीगल प्रोसेस। जैसे मैंने कहा था कि लीगल प्रोसेस हम समझते हैं कि लॉयर्स और जजेस के हाथ में है, और जज क्या फ़ैसला देंगे अंत तक पता नहीं चलता। लेकिन इसमें एक लोक अदालत ऐसा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए लोग अपना क्या फ़ैसला चाहते हैं, उसको सबसे अच्छे फ़ैसला को निभाने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक माध्यम बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आज जो पुंछ के लोगों को भी एक मौका मिलता है, सारे देश भर जो एक मूवमेंट चल रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से,
लोक अदालत का एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मैं कोशिश करूँगा और जाके समझने की कोशिश करूँगा बार के मेंबर से, जुडिशरी से बात करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आई विल सर्टनली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सी दैट द प्रॉब्लम्स विच आर अफेक्टिंग द लीगल the justice dispensation machinery in the state is improved, in the district is improved. यही सोचता हूँ।